Namaskar. Myself, Dr. Sneh Kumar Mishram, Department of Sociology and Social Work, Bharati Vishwavidyalaya Durg, Chhattisgarh, welcomes you all in today's lecture of research methodology. Today, we will discuss on this topic of selection and planning of research project part 2. In our previous lecture, we have discussed on its part 1 with a few important subtitles. In this lecture, we will discuss on the rest few subtitles which is related very much strongly to this topic of selection and planning of research project. So today we will discuss on these subtitles. Look on it. First one is pilot survey and pre-testing. Pilot survey and pre-testing. Second, time and cost estimate. Time and cost estimate. Third is selection and training of personnel. Selection and training of personnel. Next is research administration. Research administration. Next is to get yourself ready. The last is to get yourself ready. So in previous lecture, the subtitles which we have discussed, I think you have understood them. So in continuity, we will discuss and try to clarify these subtitles in the order to understand how to select and elect a research topic for your research project. तो हिंदी में हम देखें यदि तो किस प्रकार से हम जो हैं योजना बनाते हैं और चयन करते हैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट का या शोध योजना का, इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे और हमने अपनी चर्चा के दौरान बहुत सारी बिंदुओं पर डिस्कस किया, बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं उस पर हमने समझने का प्रयास किया साथ में हमारे डिस्कशन में। आज हम इन टॉपिक्स पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। पायलट सर्वे जो होता है वो उसे हम हिंदी में कहते हैं शोध पूर्व सर्वेक्षण। शोध पूर्व सर्वेक्षण ऐसा सर्वेक्षण जो शोध के पहले किया जाता है। ओके, हम डिटेल में इसे देखेंगे। पहले हम इन सबटाइटल्स को हिंदी में देख रहे हैं। प्री टेस्टिंग पूर्व परीक्षण, शोध पूर्व सर्वेक्षण और पूर्व परीक्षण। शोध पूर्व सर्वेक्षण और पूर्व परीक्षण। टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट, समय एवं लागत का अनुमान लगाना। हमारे जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट, जो रिसर्च का टॉपिक, जो रिसर्च वर्क हम करने जा रहे हैं उसमें लगने वाले समय का और जो लागत उसमें आएगी, जो धन उसमें व्यय हो सकता है, उसका अनुमान लगाना। नेक्स्ट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, चयन करना और उन्हें ट्रेन करना, प्रशिक्षण देना ऐसे सहयोगियों को जो एक रिसर्च प्रोजेक्ट में सहयोग करते हैं अनुसंधानकर्ता का। कभी ऐसा होता है कि अनुसंधानकर्ता को एक से अधिक सहयोगियों की आवश्यकता होती है। दे कॉल एज अ रिसर्च असिस्टेंट। सो द रिसर्च असिस्टेंट आर हेल्पिंग द स्कॉलर टू clarify and data collection and data analysis in various steps in our research work. Scholars try to get help. If it is necessary, then scholars try to get help of more than 2 or 3 research assistant. It will be depend on the
nature of which kind of research project you are handling. So, if your research area is big and your sample size is big, so it is not possible for a scholar himself or herself to manage a big research area or a big sample size. So, for a big sample size, which is occurred from a big research area, scholars may get help of some research assistants. Okay, and the research officer in various fields or private field or government field, they also, when they take any research project as a plan for some private work or some government related plannings, they take a few research assistant under them, and with the help of those research assistant, they try to perform good research work with their research projects. तो चाहे हम एक शोधकर्ता की बात करें, चाहे हम किसी बड़े लेवल के कोई रिसर्च से रिलेटेड, अनुसंधान से रिलेटेड कोई किसी अधिकारी की बात करें, वो कोई प्रोफेसर हो सकते हैं या कोई और उस स्तर के अधिकारी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है किसी सरकारी फर्म से जुड़े हों, वो प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं। उन्हें कभी आवश्यकता होती है रिसर्च जो एरिया होता है, जो हमारा समग्र होता है, समग्र में से जब हम निदर्शन की प्रक्रिया के द्वारा अगर हमारा समग्र बड़ा होगा तो हमें ज़्यादा निदर्शन की आवश्यकता होगी। निदर्श या प्रतिदर्श जिसे हम कहते हैं, उसकी ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होगी हमारे प्रतिदर्श के रूप में चयन करने की। तो मान लीजिए बहुत सारे लोग जो हैं इनका चयन करने की आवश्यकता हो रही है, तो रिसर्च असिस्टेंट जो होते हैं, शोध सहायक जो होते हैं, वो रखे जाते हैं, और शोध सहायक जो हैं पूरे रिसर्च की, पूरे शोध की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न चरणों में जो स्कॉलर होते हैं या जो अनुसंधान अधिकारी होते हैं उनकी मदद करते हैं, और उनकी मदद से ही जो है एक बड़े रिसर्च वर्क को, एक बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीट करने का, सफलतापूर्वक उसे पूरा करने का प्रयास किया जाता है। तो उनकी ट्रेनिंग की बात हो रही है यहाँ पे, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सोनल। दिस पर्सोनल may be defined as RA, research assistants. So, how to select research assistant for a particular project which is have a different kind of nature in itself. So, it is needed that a research assistant have a good knowledge about the research project topic, and also have a fluent knowledge of languages, and also have some knowledge of static tools and computer applications. So research assistant may perform a good research work, and these kind of research assistants are used by research officers and also by the scholars which have a big research area and big sample size, as we have talked before. So in this process we try to select and train the research assistant as per the requirement of our research project topic. रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन, शोध का प्रबंधन करना, किस प्रकार से शोध के प्रबंधन की आवश्यकता होती है शोधकर्ता को या अनुसंधान अधिकारी को, इसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। To get yourself ready, सबसे पहले तो जो शोधकर्ता है उसे किस प्रकार से स्वयं को तैयार करना होता है, ये
इस सब टाइटल में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम फिर से समझने का प्रयास करते हैं डिटेल में each points, each subtitle we are trying to discuss now. What is pilot survey? First, try to understand it. Pilot survey. Pilot survey means शोध पूर्व सर्वेक्षण. Survey. You have listened to many kind of surveys in various fields of society, marketing, business, election, and many other things, many other fields. So, the first thing, try to understand survey. What is social survey? Social survey is a scientific process to get data and the particular person's view on something, a scientific way, with objectivity, with scientific objectivity. जो सामाजिक सर्वेक्षण होता है वो संबंधित व्यक्ति से तथ्य संग्रहण करने का एक वैज्ञानिक तरीका होता है, एक वैज्ञानिक प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत हम बिना किसी प्रकार के पूर्वाग्रह को बीच में आए बगैर हम प्रयास करते हैं तथ्य संकलन का, सामने वाले व्यक्ति के रुझानों को जानने का किसी पर्टिकुलर किसी विशेषीकृत विषय के संबंध में पूर्णतः ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता के साथ। ओके, तो हम समझ गए सर्वेक्षण क्या होता है। अब पायलट सर्वे क्या होता है, शोध पूर्व परीक्षण क्या होता है। जब हम शोध करने जाते हैं, हमने रिसर्च टॉपिक जब हमें डिसाइड करना होता है, हम उसी की बात कर रहे हैं, सिलेक्शन एंड प्लानिंग ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट। हम पूरी तरह से अपने शोध के प्रबंध को किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं और किस प्रकार से उसकी योजना हम बना सकते हैं, किन किन चीज़ों को हमें चयन करना चाहिए, इन सब बातों पे ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हम पायलट सर्वे करने जाते हैं तो ये पायलट सर्वे होता है संबंधित जो हमारा शोध का विषय है उससे संबंधित हम देखें पहले जा करके कि हमारे जो फ्यूचर रिस्पोंडेंट जो होंगे वो कौन से होंगे, हमारा अध्ययन का क्षेत्र कैसा होना चाहिए संबंधित विषय के संबंध में, टॉपिक के संबंध में, हमारे जो रिस्पोंडेंट है वो किस प्रकार से मिलेंगे, हमें कहाँ मिलेंगे, कैसे हैं, उनकी आर्थिक सामाजिक परिस्थिति किस प्रकार की है, ये सब जा करके ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम पायलट सर्वे करते हैं। This observation may be participatory observation, half participatory observation or non-participatory observation, but with the help of the method of observation, we are trying to understand the research area, the respondent, our future respondent, their socio-economical and psychological status. Okay. हम उनकी मनो सामाजिक स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं, हम उनकी आर्थिक स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं, हम उस पर्टिकुलर रिसर्च एरिया या कम्युनिटी समुदाय को समझने का प्रयास करते हैं। ये पायलट सर्वे में होता है, ये बहुत आवश्यक होता है, तभी आप सही तरीके से रिसर्च को अपने आगे ले जा सकते हैं। तो ये हमें करना होता है। प्री टेस्टिंग, पूर्व परीक्षण भी करना होता है। हाइपोथेसिस एक तरह का पूर्व परीक्षण होता है और जिस प्रकार से हम हाइपोथेसिस निर्मित करते हैं कि हम जो है हमारी हाइपोथेसिस जो है वो हमारे शोध के उद्देश्यों से संबंधित होती है और परिकल्पना होती है, उसके संबंध में संभावित उत्तर खोजने का हम प्रयास करते हैं हाइपोथेसिस में। तो उस हाइपोथेसिस की प्री टेस्टिंग हम कर लें संबंधित डाटा के द्वारा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, और उस पर्टिकुलर टॉपिक के संबंध में जो हमने विभिन्न प्रकार के साहित्यों का अध्ययन किया है, चाहे वो शोध साहित्य हो, चाहे पुस्तकें हो, चाहे आर्टिकल्स हो, रिसर्च पेपर्स हो, जो भी डाटा, जो भी साहित्य, लिटरेचर हमारे पास उपलब्ध है, with the help of all the sources we are trying to make a strong hypothesis related to our objectives of research. Okay, then we are trying to pre-testing of our hypothesis with our knowledge about various
fields of knowledge about our research topic or research project. Okay, so in this manner we try to pre-test our hypotheses for getting a good direction for our research work. Okay, next subtitle is time and cost estimate. कितना समय लग सकता है, कितनी लागत लग सकती है पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट में, पूरे रिसर्च वर्क में, इसको समझने का जो है और इसका अनुमान लगाने का जो है प्रयास हमें पहले से ही कर लेना चाहिए, ताकि हम जो है रिसर्च करने के दौरान एक निश्चित समयावधि में और आर्थिक संसाधनों की जो उपलब्धता है हमारे पास, उन सीमाओं के अंदर ही हम सफलतापूर्वक अपने शोध कार्य को निष्पादित कर सकें, मैनेज कर सकें। ये हमें करना होता है। सो ये रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम इस प्रकार से टाइम और जो कॉस्ट है उसके एस्टिमेट को तय करके, निर्धारित करके, योजना बना करके हम समझने का प्रयास कर सकते हैं और तभी हम आगे बढ़ें। जब हमारा टाइम अलाउ कर सकता है पर्टिकुलर रिसर्च प्रोजेक्ट पे और हमारी जो आर्थिक संसाधन है वो अलाउ कर सकते हैं, तभी हम ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लें और आगे बढ़ें। ये हमें देखना होता है। नेक्स्ट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल। इसके ऊपर हमने इस तरह से अभी चर्चा की है कि किस प्रकार से हमें रिसर्च असिस्टेंट्स की आवश्यकता पड़ सकती है और कैसे रिसर्च असिस्टेंट्स में चुनाव हमें करना चाहिए और उन रिसर्च असिस्टेंट्स में किन किन प्रकार की क्वालिटी होनी चाहिए, इस पर हमने डिस्कस किया है। इन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले तो उन्हीं सावधानियों को और उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए हमें उन्हें ट्रेन करना होता है और उनका चुनाव करना होता है रिसर्च असिस्टेंट्स का, इफ रिक्वायर्ड ओनली देन। नेक्स्ट टॉपिक इज रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन, शोध प्रबंधन। किस प्रकार से हम अपने शोध को प्रबंधित कर सकते हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है एक शोधकर्ता के ऊपर कि वो रिसर्च असिस्टेंट्स अगर है उसके पास में तो उनको कैसे मैनेज करेगा, ईच स्टेप ऑफ रिसर्च वर्क वो किस प्रकार से मैनेज करेगा, डाटा कलेक्शन किस प्रकार से किया जाए, डाटा एनालिसिस किस प्रकार से किया जाए, उसके लिए प्री प्लानिंग किस प्रकार से करनी चाहिए, ये सब की जो है रूपरेखा पहले से बना ली जाती है और बेहतर प्रबंधन के लिए समय समय पर उस जो योजना है, शोध कार्य की योजना है, बार बार उसको रिवाइज किया जाता है, देखा जाता है कि सही समय पर हमारे जो स्टेप्स बाय स्टेप जो हमारे रिसर्च के हैं उनमें हम आगे बढ़ पा रहे हैं कि नहीं, क्या हम बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं, कई विषय से हमारा भटकाव तो नहीं हो रहा है। इन सबके संबंध में हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए, हमारे पास योजना तैयार होनी चाहिए, वरना हम रिसर्च करने के दौरान ही अपने उद्देश्यों से भटक सकते हैं या हम काफ़ी धीमी गति से रिसर्च की प्रक्रिया कर सकते हैं या बहुत जल्दबाजी में, हड़बड़ी में भी हम रिसर्च को कर सकते हैं। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, अगर हम इस प्रकार की असावधानियों में फंस गए तो हमारा जो रिसर्च वर्क है वो अपनी ऑब्जेक्टिविटी, अपनी साइंटिफिक नेचर को खो देगा और ये जो है किसी तरह से फिर साइंटिफिक रिसर्च कहलाने के लिए प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इससे हमें बचना है, इसलिए प्रॉपर प्लानिंग जो होती है वो हमें करने की आवश्यकता होती है हमारे शोध प्रबंधन के लिए। ये आपको भी करनी होगी, ये सभी करते हैं और करना चाहिए। टू गेट योरसेल्फ रेडी, सबसे पहले इस टॉपिक पे हम देखेंगे कि अनुसंधानकर्ता जो स्वयं है वो तैयार रिसर्च करने के लिए, और सबसे जो आवश्यक पहलू है उन पे हम जैसे डिस्कस करें तो सबसे पहले तो जो है आपके पास जो लिटरेचर है, जो चाहे वो रिसर्च पेपर के रूप में हो, रिसर्च के थीसिस के रूप में हो, बुक्स के रूप में हो, आर्टिकल्स के रूप में हो, ई कंटेंट हो, जिस भी प्रकार का हो, वो सभी के बारे में जो
तो शोधकर्ता को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, वो सब उसे गैदर करना होता है, उसका एनालिसिस करना होता है, ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि अब कौन सा काम है जो मेरे पूर्ववर्ती जो स्कॉलर्स रहे हैं वो नहीं कर पाए हैं और जिस पे मुझे फोकस करना है। तो ये तभी पता चल सकता है जब अच्छी तरह से एनालिसिस किया गया हो, अच्छी तरह से स्टडी की गई हो जो रिलेटेड लिटरेचर है उसका। साथ ही साथ कंप्यूटर एप्लीकेशंस का नॉलेज, सम काइंड ऑफ स्टैटिकल टूल्स विच में नेसेसरी टू पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक, उसका ज्ञान भी होना आवश्यक है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस का ज्ञान होना आवश्यक है, स्टैटिकल टूल्स का नॉलेज होना आवश्यक है। और सबसे पहली जो आवश्यकता तो ये होती है कि मनोवृत्ति जो है, एटीट्यूड जो है स्कॉलर का, वो पूरी तरह से साइंटिफिक होना चाहिए। वो किसी प्रकार के प्रेजुडिसेस के दबाव में किसी रिसर्च वर्क में ना आए, वो किसी प्रकार के प्रलोभन के दबाव में किसी रिसर्च वर्क में ना आए। पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स को पूरी तरह से अवॉइड करना होगा, ऑब्जेक्टिविटी लानी होगी रिसर्च में, और किसी तरह की जो है पर्सनल परेशानी को या प्रॉब्लम्स को अपने रिसर्च पे हावी होने नहीं देना है, अपने रिसर्च वर्क को कंटामिनेट करने नहीं देना है। इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। तो रिसर्चर को खुद मनोसामाजिक रूप से तैयार होना होता है सोशल रिसर्च के लिए, और सभी प्रकार के धारणाओं से अपने को मुक्त करना होता है, तभी वो एक पूरी तरह से वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ प्रकार का ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक काइंड ऑफ स्टडी कैन हैपन विथ scholars. Okay, so today we have discussed on this topic. I hope you understand this. So आज के लिए इतना ही। नए टॉपिक के साथ फिर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।